ओके, तो वंस अगेन वी आर बैक। हमने जो क्वेश्चंस छोड़े थे फ्रॉम एक्सरसाइज 15A जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, राइट? आई थिंक आपको याद रहेगा एक्सरसाइज 5A नॉट 15A, 5A। उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़े थे हमने जो एडवांस व्हाट वी से एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे, जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज। ओके, so let's start with the question number 15. The number of arrangement of the letter in the word failure. Okay, the number of arrangement in the letter failure. So this is the word failure. So there are 1 2 3 4 5 6 7, there are total 7 letters. Okay, so that vowels are coming together. Okay, vowels means, so vowels आपको यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज रहना चाहिए। vowels means nothing but A E I O U। ये जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या बोला उन लोग ने, दे आर कमिंग टुगेदर। वो लोग क्या आ रहे हैं, हमेशा साथ में आ रहे हैं। सो हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन दिस फेलियर? सो देर आर, सर ए इज देयर, आई इज देयर एंड यू इज देयर एंड ई इज ऑल्सो देयर। तो देर आर 4 वॉवेल्स टुगेदर। और रिमेनिंग क्या क्या बचता है आपका सर? एफ बचता है हमारा, एल बच रहा है और आर बच रहा है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो वी विल कंसिडर दिस ऑल वॉवेल्स एज अ वन। एक ही यूनिट पकड़ेंगे हम लोग उनको। क्या पकड़ेंगे? एक ही यूनिट पकड़ेंगे। द रीजन इज कि दे व्हेनेवर द अरेंजमेंट इज चेंजिंग, जब भी उनका अरेंजमेंट चेंज होगा तभी भी वो लोग हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। सो हम लोग उसको क्या एक ही पकड़ेंगे, एंड 2 and 3 and 4. So the first it is going to be 4p4. Understood? It is going to be 4p4 and क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वॉवेल्स हमेशा साथ में रहने चाहिए। वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, बट वॉवेल्स कैन ऑल्सो इंटरचेंज देयर प्लेसेस। मतलब ए ई आई ओ यू ए जो है ये आपस में भी जगह बदल सकता है। तो अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4p4, or else you can write it like this directly. You can also write it like 4 factorial. You can write it 4 factorial. Why sir? देखो 4 लेटर्स है, तो 4 लेटर आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? यस सर, दे कैन चेंज इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट दे कांट गो अवे फ्रॉम ईच अदर। so the answer is 4p4, that is 4 factorial into 4 factorial. So 4 factorial is nothing but 24 into 24. Just a second. So 24 into 24 is nothing but the answer is 576. So there are how many ways? So there are how many? So there are 576 ways in which you can arrange the word failure along with the vowels coming together. So the option A is the right answer. Okay. In question number 10, in question number 16, there are in 10 examination paper are arranged. 10 examination paper are arranged in such a way that the best and the worst paper never comes together. What they are telling us? The best and the worst paper never comes together. Okay, so for such type of question we have a formula called when two particular things never comes together, we have a formula called n minus 2 bracket n minus 1 the whole factorial. So this is a simple formula which we have to keep in your mind, that whenever two particular things doesn't come, आप साथ में नहीं आते, so what we have to do, we have to take this formula and we have to solve it out. चलो let us solve it out. Sir, what is n? Yeah, total number of observation is sir 10 examination papers are there. So 10 minus 2 in bracket 10 minus 1 the whole factorial. So it is going to be 8 into 9 factorial. So it is going to be 8 9 factorial if I am not wrong. So which one is the right one? Sir, I think option C is the right answer. I hope you got it. ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। whenever they are asking you two particular things which never comes together, we have to use this formula and we have to solve along with it. सर अगर क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई रहती तो दे हैव गिवन द अरेंजमेंट की वैल्यू दी नथिंग, आप इसको सॉल्व कर देते तो इसका आंसर क्या आ जाता? जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू द आंसर। कैलकुलेटर बाबा 8 into 9 सेकंड 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2
2 8, that comes out to be 29 lakh 3040. So this was the final answer. I hope you got it. कितने अरेंजमेंट्स है? देयर आर एन 29 लाख 3040 now ways are there, but according to the options the correct answer is 8 into 9 factorial. So in question number 17, n articles are arranged in such a way that two particular articles never comes together. The number of such articles, the number of such arrangement is, okay, just now only I told you that whenever two articles, whenever the two particular things never comes together, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? सो द फॉर्मूला इज नथिंग बट n minus 2 the bracket n minus 1 the whole factorial, right? Yes or no? So the answer is A. Simple, answer is A. Okay, question number 20. The number of 4-digit number, we have to find the number of 4-digit number greater than 5000. Okay, the very first condition is it is greater than 5000, 5000 से बड़ा है. Can be formed out of the digit, कितने कौन से डिजिट दिए आपको? 3, 4, 5 and 6. They are telling us to find the number of digit can be formed out of 3, 4 and 5 and 6 and 7, sorry and 7. I didn't 7 देखा ही नहीं मैंने. चलो, तो ये जो 5 डिजिट्स दिए हैं आपको, इसमें से आपको क्या करना है? आपको 4 डिजिट्स नंबर निकालने. कितने डिजिट नंबर निकालने? 4 डिजिट, 4 डिजिट्स नंबर निकालने. ओके, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है उन लोग ने. तो कंडीशन क्या है? सारे नंबर्स जो थे वो 5000 के ऊपर रहने चाहिए थे. इट शुड बी मोर देन ऑलवेज 5000. तो 3 और 4 से तो नंबर बनने नहीं वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 3 और 4 से नंबर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे. सो ये दोनों तो ऑप्शन गए हाथ से. तो बचे क्या? 5, 6, 7. तो कितने नंबर बचे? तो 3 नंबर्स बचे, राइट? 3 नंबर्स बचे आपके पास. तो अलॉन्ग विथ दिस 3, चलो सर ये 3 नंबर्स तो गए, बट एक मिनट, अभी आपके पास प्लेसेस कितने वैकेंट है? तो देयर आर टोटल 3 प्लेसेस वैकेंट. बट ये जो आपके 5 प्लेसेस थे, 5 नंबर्स थे, इसमें से हमने एक नंबर ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया है, क्योंकि आपने एक नंबर 5, 6, 7 ये तीनों में से कोई तो एक नंबर यहाँ पे चले जाएगा. कोई भी एक नंबर तो बटे हुए से जाना ही है. बट बचेंगे कितने नंबर आपके पास? सर उसके बाद हम लोग के पास बचते हैं सर 4 नंबर्स बचेंगे. समझ रहा है क्या मेरी बात को? देखो आपके पास टोटल 5 नंबर्स थे. 5 नंबर्स में से 3 नंबर, आप ये 2 नंबर ले नहीं सकते क्योंकि आपका जो नंबर है वो 5000 के ऊपर रहना चाहिए. इसके लिए तो बचे कितने? 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3 नंबर्स आपके पास बचते, तो आपने यहाँ पे ले लिए 3 नंबर्स. ओके, सो 3 नंबर्स के बाद आपके एक जगह तो फिक्स हो गई, यानी कि एक नंबर कंफर्म हो गया. फिर आपके पास टोटल नंबर कितने थे? टोटल नंबर हमारे पास 5 थे. तो सेकेंड यहाँ पे ऑन द 100 प्लेस, ऑन 100 प्लेस आपके पास 3 और 4 भी एक्टिव हो जाएंगे वापस. हो जाएंगे कि नहीं? यस सर, 3 और 4 एक्टिव हो जाएंगे वापस, क्योंकि वहां पे आप 3 और 4 ले सकते हो. क्लियर है? तो बट 5, 6, 7 जो हम लोग ने ऑलरेडी एक यूटिलाइज कर लिया था, उसमें से एक नंबर ऑलरेडी गया रहेगा. तो बचे कितने आपके पास? 4. तो 4 नंबर के बाद आता है आपका 3 नंबर्स बचते हैं, और 3 के बाद 2. चलो अब इसका प्रोडक्ट निकालते, देखो क्या आता है आपका आंसर. जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. तो द आंसर इज 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. द आंसर कम्स आउट टू बी 72. आंसर कितना आता है आपका? 72. चलो 72, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि आपको समझ गया. कुछ नहीं करना था, सबसे पहले तो आपको नंबर सीरीज लिख के लेनी है. फिर उन लोगों ने बोला है कि सर आपका जो पहला डिजिट है, आपका जो नंबर है जो फॉर्म होने वाला है, इट इज ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000 होने वाला है. तो सर हम लोग यूनिट जो आपका 1000 प्लेस है उसमें हम लोग 3 और 4 तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 3 और 4 लेंगे तो नंबर लेस देन 5000 हो जाएगा. इसके लिए हम लोग ने क्या लिया? 5000 लिया. 5, 6, 7 ये 3 नंबर लिए. आ रही है बात समझ में आपको? 3 नंबर लिए. फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया? उसके बाद जो बचे कुछ नंबर थे, कितने बचे आपके पास? एक नंबर तो गया, तो उसके बाद 4 नंबर बचे. 4 के बाद 3, 3 के बाद 2. इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा आपका निकलता है 72. सो द आंसर इज 72. आई होप कि आपको समझ गया है. अगर फॉर्मूला वैसे आपको बताने जाओ तो देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास कितने अरेंज प्लेसेस थे? सर हमारे पास 4 प्लेसेस है, राइट? सो 4 प्लेसेस में से हम लोग यहाँ पे 3 और 4 तो नहीं ले सकते, तो ये तो चले गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2 तो चले गए.
तो बचे कितने सर 5, 6 और 7, राइट। तो कितने नंबर्स ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे सर, यहाँ पे हम लोग 3 नंबर्स ले सकते हैं, 3 नंबर्स इंटू 3 नंबर्स इंटू। आपको यहाँ पे करना है, आपके पास अभी कितने नंबर बचे सर, हमारे पास बचे सर 3 नंबर तो गए, 3 नंबर गए मतलब 3 में से कोई तो एक नंबर यहाँ पे चले जाएगा, तो 3 में बचे कितने, 5 में से सर 4 नंबर बचते, तो आपको यहाँ पे निकलेगा 4p3। 4p3 क्यों सर, एक तो 4 नंबर्स बचे आपके पास और उसमें से प्लेसेस कितने आपकी 3 प्लेसेस है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, 3 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 1 2, विच इज नथिंग बट सेम। देखो आप देख सकते हो तो दोनों भी सेम ही है। ओके ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 21 सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 20, एक स्टेप आगे है बस, उसमें आपको यहाँ पे भी क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। 4 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर 0 1 2 एंड 3। सबसे पहले तो उन लोग ने कंडीशन क्या बोल दी सर, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हमको, कितने डिजिट बनाने, 4 डिजिट बनाने, ठीक है सर, हम लोग ने मान लिया, आपने 4 डिजिट बोल दिया, हमने बनाने, ठीक है। तो हम लोग को डिजिट्स क्या क्या दिए, 0 1 2 3 एंड 4, बराबर, ये 4 डिजिट्स हमको दिए गए और उन लोगों ने बोला है नो डिजिट इज रिपीटेड देन द नंबर ऑफ सच नंबर इज, आपको 4 डिजिट नंबर निकालना। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, कैन आई टेक 0 ओवर हियर, 0 1 2 3, अगर मैंने एक नंबर बना दिया 0 1 2 3, इज इट अ 4 डिजिट नंबर? नो सर, इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, इट इज 3 डिजिट नंबर, बराबर, ये तो 3 डिजिट नंबर होता है ना सर। कैन आई टेक इट लाइक दिस 1 0 2 3, यस सर, इट इज 4 डिजिट नंबर, इट इज कॉल्ड एज 123, इट इज कॉल्ड एज 1023। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो ये बताने का क्या तात्पर्य था आपको, बता दो। जब आप 4 डिजिट नंबर बनाओ या 5 डिजिट नंबर बनाओ और उसमें 0 रहेगा, तो 0 यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं, यहाँ पे अनएक्टिव रहेगा, अनएक्टिव, क्लियर है, ये क्या रहेगा, अनएक्टिव। तो सर एक्टिव कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितने नंबर है सर, 4 नंबर्स एक्टिव है, तो 4 ले लेने के, मल्टीप्लाई बाय 4 एक्टिव नंबर से, तो आपने 4 ले लिया। फिर उसके बाद सर जब आप पहला स्टेप कवर कर लेते हो तो ये नंबर क्या हो जाता है, फिर से वापस 0 एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 एक्टिव। बट यहाँ पे जो 4 डिजिट्स थे, यहाँ इसमें से एक डिजिट हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया रहेगा, तब तक कर लिया रहेगा कि नहीं, ये सर हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया रहेगा। तो इसमें से नंबर कितने बचे, इसमें से 3 नंबर बचे और इसमें से 1, तो ये कितना हो जाता है आपका 4 बचता है वापस, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 4 इंटू 4। तो आंसर कितना आएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी इंटू 3 टू 2, द आंसर इज 96। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर सी, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड ट्रायंगल टू बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वर्ड एंगल इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल सबसे पहले ट्रायंगल की स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं फटाफट आप लोगों के लिए, TRIANGLA, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल। और उन लोग ने क्या बोला है सर, ये जो एंगल वर्ड है, ये जो एंगल वर्ड है, इट विल ऑलवेज प्रेजेंट, इट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब इसको हम लोग 1 मानेंगे, यस और नो, और 2 3 4, 2 3 4, सो व्हाट विल बी द permutation, so it is going to be 4p4, right? but can I multiply it? सर आपने एक बार ऑलरेडी एक बार ऐसा कुछ तो सम हमको कराया था जिसमें ये जो एंगल के जो लेटर्स है ANGLE, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, यस सर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर इंटरचेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, नहीं 4 नहीं, 1 2 3 4 5, सर 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, राइट, तो 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कर देता हूँ तो क्या मेरा आंसर राइट आएगा? सर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर हम लोग को यहाँ पे बोला है एंगल, ये जो वर्ड स्पेसिफाई किया उन लोग ने, एंगल इट शुड ऑलवेज प्रेजेंट। अगर आप उसमें भी इंटरचेंज कर दोगे, एंगल की स्पेलिंग ही बदल दोगे, तो एंगल तो रहेगा ही नहीं, एंगल बचेगा ही नहीं, तो आपका आंसर बटे हुए से गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 5 फैक्टोरियल लिया है आपने, वो आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ 4p4 निकालना है, विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर आता है आपका 24 वेज इज द फाइनल आंसर। आई थिंक योर ऑप्शन, आई हैव नॉट, आपके क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे आपका, बट
आप आपके मॉड्यूल में देख सकते हो, तो आंसर 24 वेज आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन of this exercise. If the letter word daughter are to be arranged so that the vowels occupies the odd places, then the number of the different words are. तो ये जो daughters वर्ड लेटर है उसका कितने लेटर्स है इसमें, तो डॉटर लिख देता हूँ DAUGHTER। वॉवल्स कौन से इसमें बेटा, वॉवल्स है आपके ए यू और ई है, राइट, AUE, दिस आर द वॉवल्स। और उन लोग ने बोला है कि द वॉवल्स ऑक्यूपाइज द ऑड प्लेसेस, उन लोग ने बोला है कि वॉवल्स जो है वो सिर्फ आपके क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कौन से प्लेसेस करते हैं, ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डॉटर के 8 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डॉटर्स के 8 लेटर्स है। तो इसमें से ऑड कौन से है, ऑड है, राइट, नो नो नॉट दिस, सॉरी, दिस इज द ऑड वन, ऑड 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 एंड ऑड, these are the odd numbers. But how many odd numbers places are there? So 4 places are there. So 4 places are there. So it is going to be 4P3 because we are having only 3. And how many remaining letters are there? The remaining letters are there 5 factorial because 5 factorial है तो आपके 5 letters बच रहे जो कॉन्सोनेंट है, तो 5 letters है तो 5 factorial, तो जब निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4P3 इज नथिंग बट, चलो सॉल्व करते हैं, 4 factorial upon 4 minus 3 the whole factorial is equal to multiplied by 5 factorial, and it comes out to be 4 into 3 into 2 multiplied by 5 into 4 into 3 into 2। आंसर इज, कैलकुलेटर निकालो इसी के साथ, 4 into 3 into 2 into 5 into 4 into 3 into 2, 2880 is the final answer. Let us check whether we are having the option 2880. The option A is the correct answer. I hope you have got the clarification of all the exercise questions of 5A. Sooner we will be starting with the exercise 5B once we are completed with the concepts of 5B. Thank you.